Yesterday we started with a new chapter. जिन्होंने नहीं किया है, I've already sent the link of the yesterday's videos in the group. So if you are interested in that, so you can watch those videos. ठीक है? So we are doing in continuation to that. लास्ट में कल लास्ट क्लास जो टॉपिक था वो एंड हुआ था टिल द एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है? सो वी बेसिकली completed the epithelial tissue and उसके आगे में एक टॉपिक आता है which is the different type of glands which are present. ठीक है? So we are going to start with from the glands today. जैसे हम बोलते हैं we have been studying or we have been hearing so many glands, like there's a salivary gland, there is oil gland, then there is sweat glands, pancreas. So different type of glands are there. So what does actually a gland mean? Gland का मतलब क्या होता है? Gland is actually various collection of cells which are secretory in function. ठीक है? इसीलिए उसको ग्लैंड बोलते हैं बिकॉज ग्लैंड के अंदर वो जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है? दैट इज सिक्रीशन. दे कंटेन सर्टेन कंपोनेंट्स whose aim is to perform secretion. ठीक है? So all those cells which are secretory in function, the group of those cells that is known as a gland. ठीक है? So now we are going to do the classification of the gland, and the classification of the gland will be done on the basis of several criteria. Okay, so the first criteria that we are going to talk about is the number of cells. So on the basis of number of cells, glands को हम classify कर सकते हैं. Either it can be a unicellular gland or it can be a multicellular gland. ठीक है? So the name itself says it that जो unicellular gland होगा वो कौन सा gland होगा? There's only one cell which is acting as a gland. ठीक है? And multicellular gland कौन सा होगा? Many cells they are acting as a gland. So unicellular में yesterday also I told you an example, that is the goblet cells. Goblet cells क्या है? They are the example of epithelial tissue only, and उसमें they take up the जो epithelial goblet cells basically epithelial tissue होते हैं, epithelial tissue के cells होते हैं. So when they take up the function of secretion, they are known as goblet cells. So again जो goblet cells हैं, they are an example of unicellular glands, and multicellular glands का example we can take the salivary glands. ठीक है? So this is the first criteria of or the classification of the glands on the basis of number of cells. ठीक है? जो second criteria है, that is the type of the secretion which is actually produced. The type of secretion which is produced. If the secretion is watery and it contains some proteins or it can also contain certain enzymes, so उसको हम बोलेंगे serous glands. अगर gland की secretion में if it is fluidy or watery and it contains certain proteins or enzymes, then we call those glands as the serous glands. And the example of serous glands can be salivary glands. Okay, और जो mucus glands होते हैं obviously जो mucus secrete करते हैं, for example goblet cells, and these goblet cells they are present in our stomach. What is the purpose of these goblet cells? Since they are secreting mucus, if you remember stomach में what is present, HCl is secreted. ठीक है? Because of which the pH of stomach is about 1.5 to 2.5, which is highly acidic. ठीक है? So there should be something which should prevent the wall of the stomach from the acidic action of the HCl. ठीक है? So in that case, the mucus which is secreted by the goblet cells comes to the rescue. ठीक है? So जो mucus secrete करते हैं goblet cells, they help in preventing of collapsing the walls of the stomach because of the action of the HCl. Okay. So and next जो आते हैं, that is sebaceous glands. Sebaceous glands also known as the oil glands. Obviously तो oil glands है तो you know इनकी secretion क्या होगी, that will be the oil. ठीक है? Oil secretion, and you also know that maximum number of oil glands they are present on our face. That is why our face tends to get oily after some time. ठीक है? Now the third criteria is on the basis of the mode of secretion. ठीक है? Now this is important. On the basis of mode of secretion, the glands can be categorized into three parts: the holocrine glands, merocrine glands, and the apocrine glands. ठीक है? So इनका जो criteria है, that is the mode of secretion, उसी के basis पे इनका action है. होलोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? होलो मीन्स एंटायर और होल. सो होलोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होगा कि होल सेल और द एंटायर सेल विल रप्चर टू रिलीज द सिक्रीशन. ठीक है? फॉर एग्जांपल इफ दीज आर द सेल्स, ठीक है, एंड एज यू नो द ऑल द एपिथेलियल सेल्स दे विल बी रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है? सो दिस विल बी द बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो इसमें क्या होगा कि ये जो सेल्स प्रेजेंट है इनमें क्या होगा
कि entire cell is rupturing. Initially this cell was a cell like these two cells only, ठीक है, but then gradually क्या हुआ, since it is a holocrine gland and the entire cell will eventually rupture to release its secretion. So this third cell will वो completely ये wipe off हो जाएगा and it will release its secretion. So these are the secretions which are released by this cell, ठीक है. So initially there were 3 cells and now there are only 2 cells because the third cell eventually goes away because it is a holocrine gland, ठीक है. So holocrine gland में क्या होगा, जो कौन से वाला सेल रिलीज करेगा अपना सिक्रीशन, the old cells they will rupture and they will be need to be replaced by the new cells. इसीलिए तो जब ये वाला सेल ओल्डर सेल जब ये चला जाएगा इसके जगह पे नया एक न्यू सेल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है. एंड विच मीन्स कि जो ओल्डर सेल रप्चर होगा दैट सेल विल रिलीज इट्स कॉन्टेंट्स, ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द होलोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है. इसमें एग्जांपल आता है सेबेशियस ग्लैंड्स और आल्सो नोन एज द ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है. जो सेकंड टाइप आता है दैट इज द मीरोक्राइन ग्लैंड्स. मीरोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है कि कोई सा पार्ट मतलब रप्चर नहीं होता है, जो सिक्रीशन है सभी के सभी सेल्स इंटैक्ट रहते हैं. द सिक्रीशन इज रिलीज्ड बाय द डिफ्यूजन एंड क्योंकि जो सिक्रीशंस है दे आर रिलीज ड्यू टू डिफ्यूजन, द एक्चुअल शेप ऑफ द सेल इट एक्चुअली रिमेन्स इंटैक्ट, ठीक है. So these are the all the intact cells and जो ये secretion in cells में से release हुई है it has been released due to the diffusion process, ठीक है. And what examples do come in merocrine glands? Merocrine glands के example में आता है salivary glands and most of the sweat glands. इसमें आप यही line लिखोगे most of the sweat glands because some sweat glands they will come in the example of apocrine glands, ठीक है. So merocrine glands के example में क्या आएगा, they will include salivary glands and most of the sweat glands. तो याद क्या रखना है, holocrine में तो entire cell is getting ruptured and कौन से वाला सेल रप्चर होगा ये कैसे पता चलेगा, the older cell which has to be replaced that cell will release its contents and eventually it will be replaced by a new cell, ठीक है. merocrine cell में क्या होगा, no part will get ruptured and the secretions they will be released by the process of diffusion, ठीक है. जो थर्ड टाइप आता है दैट इज द एपोक्राइन ग्लैंड्स. एपो मींस टिप, ठीक है. तो एपोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होगा, ओनली एंड ओनली द टिप ऑफ द ग्लैंड विल बी रप्चर्ड, दैट इज द बेसल पार्ट इट विल रिमेन इंटैक्ट, ठीक है. इसमें कौन क्या एग्जांपल आएगा, इसमें आएंगे सम स्वेट ग्लैंड्स, मतलब इसमें मोस्ट ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स आर कमिंग इन मीरोक्राइन ग्लैंड्स एंड सम इसमें जो बाकी के स्वेट ग्लैंड्स आएंगे दे विल बी द स्वेट ग्लैंड्स ऑफ द आर्मपिट एरिया एंड द ग्रोइन एरिया, ठीक है. एंड जो एक और एग्जांपल इसमें होगा मैमरी ग्लैंड्स. अब एपोक्राइन ग्लैंड्स में क्या अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे, सपोज दीज आर द सेल्स. सो इनिशियली दिस वाज द सेल, देन क्या हुआ बिकॉज इसका टिप को रप्चर होना है, सो इनिशियली क्या होगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली द शेप स्टार्ट्स चेंजिंग ऑफ द सेल. तो पहले इट वाज लाइक दिस, देन इट बिकेम लाइक दिस. नाउ द सिक्रीशंस व्हिच हैव टू बी रिलीज्ड दैट केम अप टू द टिप, ठीक है. अब क्या होगा, इवेंचुअली यहाँ से ये पार्ट इतना कट ऑफ हो जाएगा, ओनली द टिप पार्ट एंड द पार्ट विच विल रिमेन विल बी ओनली दिस वन, ठीक है. एंड दीज आर द सिक्रीशंस विच विल बी released. So this is actually the pinched portion of the cell. And what is this pinched portion? It is actually the tip of the cell which contains the secretions, ठीक है. So these are the 3 types of glands on the basis of the mode of secretion, ठीक है. जो इसके बाद next classification होगा that will be on the basis of the ducts, ठीक है. So if you have any doubt in this, you can ask me. Otherwise, you can take a screenshot of this. Done? So next classification is on the basis of the ducts. So ducts में क्या आएगा, on the basis of ducts the glands can be exocrine or endocrine. Can you tell me the difference between the two, exocrine and endocrine? Anyone? What is the difference between exocrine and, हाँ बोलो.
एक बार रिपीट करना, क्या बोला? एक्सोक्राइन कौन सा होगा? तुमने उल्टा बोला है। एक्सोक्राइन विल बी द वन जिसमें डक्ट्स प्रेजेंट होंगे। एंडोक्राइन इज डक्टलेस। इसको डी से डी यू कैन रिमेंबर। डक्टलेस विल बी द एंडोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन दे आर एक्चुअली डक्टलेस, वेराज जो एक्सोक्राइन होते हैं उनमें डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज, उल्टा बता दिया है तुमने। सो नेक्स्ट इज एंडोक्राइन, एंड एक और होता है इसमें हम लिखते हैं विच इज द हेट्रोक्राइन। ठीक है, सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होंगे? दीज आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द वंस व्हिच हैव ducts. मतलब if they have to release their secretions, what are the exocrine glands going to do? They are actually going to use their ducts to release their secretions. ठीक है, so exocrine glands का, can you give me an example of exocrine glands, the glands which have ducts? Anyone? Can you give me Mudit? Example of exocrine glands. Example of exocrine glands बच्चे. Example of exocrine and endocrine both. Liver किस में आएगा? लिवर किस में आएगा? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन? टाइप करोगे तो बोल दो, जस्ट टेल मी वेदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अच्छा चल जल्दी टाइप करो। हेट्रोक्राइन में क्या होगा? देयर सम पोर्शन इज एक्चुअली एंडोक्राइन एंड सम इज एक्चुअली एक्सोक्राइन, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोक्राइन। ठीक है, मुझे हैव यू टाइप्ड इट? जिया, कैन यू टेल मी द एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स? बच्चे स्वेट ग्लैंड्स में कौन सी डक्ट्स होती है मुझे बताना जरा, कोई मुझे डक्ट का नेम बता सकते हो तुम? और मैमेरी ग्लैंड्स में कौन सी डक्ट होती है? इनमें कौन सी डक्ट्स होती है, उनके नेम्स बता सकते हो मुझे किसी का? उनमें डक्ट्स तो प्रेजेंट होती है, बट एक्चुअल में क्या है, तुम एग्जाम्पल जो दे रहे हो, यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल जिनके डक्ट्स के बारे में यू नो वेरी कॉमनली। लाइक ठीक है, इसमें एग्जाम्पल एक्सोक्राइन में यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ, ऑलरेडी आप डाइजेशन वाले चैप्टर में कर चुके हो। फॉर एग्जाम्पल द सलाइवरी ग्लैंड्स, वी स्टडीड द 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर एंड द पैरोटिड ग्लैंड्स। सो तीनों के डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, और इसमें लिवर भी इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो। एंडोक्राइन का बता सकते हो मुझे? जिया, कैन यू टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स? अरे डकलेस बताना है, डायरेक्टली जो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, कोई भी बता सकती हो, नॉट अ टफ जॉब। बताओ जल्दी, कीप ट्राइंग, ट्राई करो, जल्दी बताओ। मुझे कैन यू टेल मी डकलेस का? सी, जो डकलेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे वो क्या होंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड, और इट कैन बी द, एक और आप थायराइड ग्लैंड लिख सकते हो। मतलब ये जितने भी ग्लैंड्स हैं जो डायरेक्टली हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वो आप उसमें क्या कर सकते हो? हाँ एग्जैक्टली, टेस्टिस कैन आल्सो बी द एग्जांपल। जो गोनाड्स है वो सब इसका एग्जांपल हो सकते हैं। एंड पिट्यूटरी, यस दैट इज राइट, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, जो भी मतलब जितने भी जो ऑर्गन्स हैं एंडोक्राइन मैकेनिज्म से एसोसिएटेड हैं, वो डायरेक्टली आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो, दैट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसको लर्न करने का सिंपलेस्ट ट्रिक है, डक्टलेस ग्लैंड्स कौन से होंगे? जिसमें डी प्रेजेंट है, सो डी फॉर डक्टलेस, so the endocrine glands are the ones which are actually ductless। ठीक है, एंड जो बाकी होंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दे हैव एक्चुअली डक्ट्स। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और ग्लैंड होता है विच इज द हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या होगा कि इसमें देयर इज सम पोर्शन विच इज एक्चुअली एंडोक्राइन
and some portion is actually exocrine. ठीक है, इसमें बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं, दैट इज द पैनक्रियाज. अब पैनक्रियाज में क्या होता है, पैनक्रियाज के अंदर अब अगर बात करें कि एक्सोक्राइन पोर्शन कौन सा होता है पैनक्रियाज का, अगर याद हो पैनक्रियाज में एक डक्ट प्रेजेंट होती है. पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो ऐसे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, याद हो तो कुछ पैनक्रियाज का, तो ये ऐसा कुछ लीफ जैसा सा स्ट्रक्चर होता है ऐसा. तो इसमें ये जो पैनक्रियाज का होता है, ये दिस इज एक्चुअली द डक्ट. ठीक है, और इसको जो पैनक्रियाज की डक्ट होती है इसको डक्ट ऑफ विर्संग भी बोलते हैं. तो जो इसमें पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पोर्शन कौन सा हो गया, दैट इज द वन विच इज एक्चुअली सिक्रीटिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ठीक है, एंडोक्राइन पोर्शन कौन सा होगा, एंडोक्राइन पोर्शन कौन सा होगा, द वन विच इज सिक्रीटिंग, जो इंसुलिन ग्लूकेगॉन और ये सब हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, दैट इज एक्चुअली द एंडोक्राइन पोर्शन. एंड उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हाउ इज पैनक्रियाज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड. सो व्हाट विल यू से, heterocline gland, which means its some portion is actually endocrine and rest portion is the exocrine. मतलब दोनों के दोनों functions present होंगे. So exocrine portion कौन सा होगा, the portion which is releasing the digestive enzymes, and the endocrine one will be the one which is the islets of Langerhans, which will be the alpha cells, beta cells, gamma cells, delta cells. ये सभी जो है they will come in the endocrine portion. ठीक है, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द डक्ट. एंड जो इसके बाद एक और बचता है, दैट इज एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ शेप. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ शेप द ग्लैंड्स दे कैन बी ईदर ट्यूब्यूलर और इट कैन बी सैक्यूलर. ठीक है, तो अगर जो ट्यूब्यूलर ग्लैंड होगे विच मीन्स इट विल बी ट्यूब लाइक. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा होगा, लाइक अ ट्यूब. एंड यहाँ पे सब क्या होंगे, दीज विल बी द सेल्स विच विल बी प्रेजेंट ऑन इट्स वॉल. सो इट विल बी ट्यूब लाइक. इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो, एपिथेलियल टिश्यू के जो इसमें आएगा वो सब इसमें आएगा, एपिथेलियल टिश्यू किसमें, ऑन द इन द ट्यूब्यूलर ग्लैंड. सो इट इंक्लूड्स द एपिथेलियल टिश्यू. एंड सैक्यूलर मीन्स और सैक लाइक. सैक लाइक कैसे होगा, ऐसा, दिस विल बी सैक लाइक. ठीक है, सो अगेन यहाँ पे इसके क्या होंगे, डिफरेंट सेल्स विल बी प्रेजेंट. सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द शेप. ठीक है, अच्छा इसके बाद में एक और आपके में बुक में तो आई डोंट थिंक वो गिवन है, बट क्योंकि यू हैव स्टडीड द क्रिप्स ऑफ लिबरकुन एंड द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड द पाइलोरिक ग्लैंड, तो इसलिए आई विल मेक यू डू दैट. ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स को क्या होता है, फर्दर क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, ये आई डोंट नो आपकी बुक में है कि नहीं है, बट क्योंकि सिंस वी हैव स्टडीड द क्रिप्स ऑफ लिबरकुन एंड द अदर ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कौन से ग्लैंड में आते हैं. ठीक है, so ये basically दिखा होगा category of tubular glands. So the tubular glands, they are of two types, simple tubular and compound tubular. So it can be simple tubular or compound tubular. Simple tubular का मतलब क्या होगा, it is actually unbranched, ये होगा unbranched, और ये कैसा होगा, इट विल बी ब्रांच. ठीक है, तो सिंपल ट्यूब्यूलर का एग्जांपल क्या आएगा, यू कैन राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, सो क्रिप्स ऑफ लिबरकुन. एंड और क्या एग्जांपल लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन स्वेट ग्लैंड. ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, सिंपल ट्यूब्यूलर. कंपाउंड ट्यूब्यूलर में एग्जांपल आ सकता है गैस्ट्रिक ग्लैंड. ठीक है, सो दे वर सिंपल ट्यूब्यूलर एंड कंपाउंड ट्यूब्यूलर. ठीक है, सिंपल ट्यूब्यूलर का अगर देखो तो मतलब एग्जांपल कैसे हो सकता है, डायग्राम लाइक दिस. ये तो सिंपल ट्यूब्यूलर हो सकता है, मतलब देयर इज नो ब्रांचिंग. और अगर कंपाउंड ट्यूब्यूलर की बात करें तो इट कैन बी लाइक
लाइक दिस, ठीक है. सो दिस इज कंपाउंड ट्यूब्यूलर एंड उसी की तरह यहाँ पे देयर विल बी द cells which will be present. Similarly on this, यहाँ पे भी ऐसे सब जगह वो सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है. सो दिस इज सिंपल ट्यूब्यूलर एंड दिस इज कंपाउंड ट्यूब्यूलर, ठीक है. तो यहाँ पे आपका ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन इट एक्चुअली इज ओवर, ठीक है. अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू में इसके बाद में एक और इसमें एक एडिशनल टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं pseudo stratified epithelium. So firstly you can take this screenshot and then I'll start with the pseudo stratified epithelium. Done? ये इस वाले इसी चैप्टर में एक पोर्शन आता है जिसमें अगर बुक में देखा हो तो उसमें कॉकरोच गिवन है, एक अर्थवर्म गिवन है और एक फ्रॉग और ये सब गिवन है, ठीक है. तो एनसीईआरटी में तो ये तीन मेंशन है बट लाइक कई स्टूडेंट्स के स्कूल में कईयों में सिर्फ कॉकरोच आता है, कईयों में कॉकरोच अर्थवर्म आता है. तो ये वाला पोर्शन में आपको मतलब इस चैप्टर के मतलब थोड़ा बाद में कराऊंगी, तब तक आप मुझे बता देना आप लोगों के स्कूल में क्या आ रहा है, बिकॉज देयर आर मेनी स्कूल्स जिनमें सिर्फ कॉकरोच आता है, किसी के में सिर्फ अर्थवॉर्म आता है, किसी के में तीनों आते हैं और किसी के में सिर्फ कॉकरोच एंड अर्थवॉर्म आता है, ठीक है ना. तो आपके जो भी जैसे भी जो भी सिलेबस में या स्कूल में जो भी आने वाला हो उसके अकॉर्डिंग मुझे बता देना किसके क्या आने वाला है, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको करवा दूंगी, ठीक है ना. सो इसमें एपिथेलियल टिश्यू में इसी में एक नेक्स्ट कॉन्टिन्यूएशन में एक चीज टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. अब ये क्या है, व्हाट इज स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम? अगर जिसने कल क्लास अटेंड करी थी उसको पता होगा एपिथेलियल टिश्यू वी वर स्टडिंग एंड उसमें जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू मैंने बताया था, स्ट्रैटिफाइड मींस द अदर नेम ऑफ द कंपाउंड एपिथेलियम विच मीन्स कि जो एपिथेलियल टिश्यू होगा उसमें बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होगी, ठीक है. सो दैट मीन्स द स्ट्रैटिफाइड. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्यूडो? स्यूडो मीन्स फॉल्स. स्यूडो का मतलब क्या होता है? False. So what does it mean कि there's a false impression of layers, ठीक है. Stratified means multiple layers but pseudo means false, so there's a false impression of layers. So there is actually false impression of layers, but actually cells they are arranged in a single layer. Cells are arranged in a single layer. And why are they arranged in a single layer? Due to the different positions of nuclei. Due to different positions of nuclei, ठीक है. So what am I saying कि pseudo stratified epithelium, अगर सिर्फ stratified epithelium देखते हैं तो stratified epithelium means that epithelial tissue which consists of multiple layers, ठीक है. But when I'm adding the word pseudo to it which means the false, so there's a false impression of multiple layers. मतलब दिखने में it seems like कि बहुत सारी multiple layers present है बट इन रियलिटी वहां उसमें सिर्फ एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है. बट देन व्हाई डज इट गिव द इंप्रेशन कि बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट है? इट गिव्स द इंप्रेशन बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द न्यूक्लियर. सो अगर इसको देखें तो ये कैसा लगेगा, लाइक तो दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन और अब इसमें सेल्स कैसे प्रेजेंट होंगे? ठीक है. तो अब डिफरेंट पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई आर देयर. तो इसमें मैं दो टाइप्स के न्यूक्लियाई ड्रॉ करूंगी. वी कैन सी टू टाइप्स ऑफ nuclei.
एक तो जो टाइप के न्यूक्लियाई हैं दे आर एक्चुअली ओवल शेप, एंड जो दूसरे टाइप के न्यूक्लियाई दे आर एक्चुअली राउंड न्यूक्लियस। तो वो किस वजह से होता है? बिकॉज देर आर, दिस इज द लॉन्ग सेल and it contains oval nucleus, and this is actually the short cell which consists of round nucleus। ठीक है, मैंने क्या बोला कि why does it seem to us कि बहुत सारी multiple layers present है? it is because कि न्यूक्लियाई की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में। इसके वजह से क्या होता है कि जो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में हम जनरली दो टाइप्स के सेल्स देखते हैं, एक होता है लॉन्ग सेल और एक होता है शॉर्ट सेल। ठीक है, तो लॉन्ग सेल और शॉर्ट सेल का क्या मतलब है? द सेल्स दे आर एक्चुअली अनइक्वल इन साइज, एंड जो लॉन्ग सेल्स होंगे उनका न्यूक्लियस का शेप कैसा होगा? इट विल बी ओवल, वेयर जो शॉर्ट सेल होंगे उनका न्यूक्लियस कैसा होगा? इट विल बी राउंड। ठीक है, तो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में कहां पे जनरली मिलेगा? इट इज जनरली फाउंड इन द कॉलमनर सेल्स, एंड यू ऑलरेडी नो कि जो कॉलमनर सेल्स होता है उनका न्यूक्लियस कहां पे होता है? इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द बेस। ठीक है, सो इट इज जनरली फाउंड इन columnar cells, और क्या होगा? the cells they are unequal in size, so the cells they are unequal in size। ठीक है, unequal in size कौन से होंगे? long cells and short cells। so long cells they will extend up to free outer surface। I've already told you what is the meaning of free surface। free surface means जो basement membrane के जो opposite side होगी that will be the free surface। ठीक है, so the long cells they will extend up to the free surface, whereas the short cells they do not reach up to the outer free cell surface। so the short cells they do not reach up to outer free surface। and I've already mentioned कि दोनों cells में nucleus की shape में क्या difference होगा? long cells they have oval nucleus and the short cells they have round nucleus। ठीक है, अच्छा because अच्छा अब इस क्योंकि ये columnar cells में mainly present होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? therefore it is known as pseudo stratified columnar epithelium। ठीक है, because it is present in the columnar cells mainly, so what do we call this epithelial tissue? We call it as pseudo stratified columnar epithelium। ठीक है, now we are going to talk about the modification of the pseudo stratified columnar epithelium, that is if cilia present। तो अगर cilia present होगा तो what will be the name of this epithelial tissue? It will become pseudo stratified ciliated columnar epithelium। ठीक है, वो अपने आप लिख लेना, just add the word ciliated and rest of the name will be same, that is pseudo stratified columnar epithelium। ठीक है, अब ये वाला ciliated pseudo stratified epithelium कहाँ पे present होगा? it will be found in the upper respiratory tract, so it will be found in upper respiratory tract, so it is found in upper respiratory tract। ठीक है, और अगर if cilia are absent, ठीक है, if cilia absent तो क्या बोलेंगे? it will be known as non ciliated pseudo stratified, वो आगे लिख लेना, that is non ciliated pseudo stratified columnar epithelium। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? it will be present है vas deferens। vas deferens कहाँ पे होता है? vas deferens they are present in the testes। ठीक है, so this cilia non ciliated pseudo stratified epithelium will be present in vas deferens। ठीक है, अच्छा एक और चीज होती है सीलिया के साथ में, that is known as स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया बहुत जगह पे पढ़ोगे। स्टीरियोसीलिया क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली सीलिया, बट इनमें डिफरेंस क्या होते हैं? दे आर स्टिफ एंड नॉन मोटाइल cilia। ठीक है, what are stereocilia? Stereocilia they are actually cilia but they are
स्टिफ एंड नॉन मोटाइल, ठीक है। सो स्टीरियोसीलिया कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर फाउंड इन एपिडिडाइमिस, अगेन अ पोर्शन ऑफ टेस्टिस, ठीक है। सो स्टीरियोसीलिया दे फाउंड इन एपिडिडाइमिस। अच्छा, इसके बाद में एक और बचता है जल्दी से, जहां पे ये आपका एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा, व्हिच इज द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस यस्टरडे। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, आई सेड कि दिस ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द यूरिनरी ब्लैडर, इसीलिए इट इज ऑल्सो नोन एज, और भी क्या बोलते हैं इसको? इट इज ऑल्सो नोन एज यूरोथीलियम। सो इट इज ऑल्सो नोन एज यूरोथीलियम, ठीक है। एंड इट इज एक्चुअली मल्टी लेयर्ड, बट जब उसको स्ट्रेच, वो उसके पास स्ट्रेचिंग कैपेबिलिटी होती है, व्हेन इट इज एक्चुअली स्ट्रेच तो सिर्फ 1 और 2 लेयर्ड होता है, ठीक है। सो इट इज मल्टी लेयर्ड। एंड कहाँ पे मिलेगा? इट इज फाउंड इन द एरियाज वेयर स्ट्रेचिंग अकर्स। सो फाउंड इन द एरियाज where the stretching occurs, ठीक है। एग्जाम्पल इज यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो जब यूरिनरी ब्लैडर, व्हेन द ब्लैडर गेट्स फिल्ड विद यूरिन, तो जब वो कंप्लीटली फुल हो जाता है तो द एपिथेलियम स्ट्रेचेस एंड द नंबर ऑफ लेयर्स इट बिकम लेस, ठीक है। मतलब सपोज अभी यूरिनरी ब्लैडर इट इज रिलैक्स, मतलब अभी इट इज नॉट फिल्ड विद यूरिन, ठीक है। तो जैसे जैसे द यूरिन स्टार्ट्स फिलिंग इन द यूरिनरी ब्लैडर, तो क्या होगा? वो ज्यादा स्ट्रेच होता जाएगा, एंड स्ट्रेच होता जाएगा तो उसके वजह से क्या होगा? द नंबर ऑफ लेयर्स दे विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है। So, and it will be able to stretch till up to only a certain extent, after which the urine will be released out of the urinary bladder, ठीक है। तो यहाँ पे आपका epithelial tissue gets over। इसके बाद जो next tissue होगा that will be the connective tissue। So यहाँ पे this gets over, so now you can take the screenshot of this। Done? So next type of tissue is, so first tissue we had, जब classification start किया था तो there were how many types of tissue? One was epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, और क्या होगा? And the nervous tissue. So there were majorly 4 types of tissue. So epithelial tissue is over. Next type का जो tissue है that is actually the connective tissue, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू ऑलरेडी नेम बता रहा है कि कुछ ऐसा टिश्यू होगा जो कि कुछ रीजन्स को या कुछ पोर्शंस को कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले विल राइट डाउन सम अ फ्यू कॉमन पॉइंट्स अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। सो दिस कनेक्टिव टिश्यू इज एक्चुअली mesodermal in origin, ठीक है। So connective tissue, it is mesodermal in origin and it is actually the most abundant one, most abundant। और क्या होगा? It is actually widely distributed, so it is widely distributed। और क्या होगा? It has two components, two components। So connective tissue has two components। What are those components? एक तो there will be some cells, there will be cells secreting fibers, ठीक है। सेल सिक्रीटिंग फाइबर्स, एंड कौन से फाइबर्स कौन कौन से होंगे? इट कैन बी कोलेजन और इट कैन बी इलास्टिन, ठीक है।
और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, देयर विल बी सेल्स सिक्रीटिंग मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स. सो सेल्स सिक्रीटिंग मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स. ठीक है, सो द सेल्फ सिक्रीटिंग मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स. ठीक है, अब मॉडिफाइड ये पॉलीसैकेराइड्स ये बेसिकली क्या करते हैं, ये दे विल मेक द ग्राउंड टिश्यू. ग्राउंड टिश्यू मतलब के दे विल मेक द, व्हाट विल बी दे मेक, दे विल मेक द मैट्रिक्स. ठीक है, ग्राउंड टिश्यू बोलो या मैट्रिक्स बोलो एक ही बात है. मतलब कि द मैट्रिक्स, द रीजन इन विच द सेल्स एंड फाइबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, सो यू कैन ऑलरेडी अंडरस्टैंड. सो मैट्रिक्स मेनली किसका बना होता है, इट इज मेनली मेड अप ऑफ, मेनली मेड ऑफ हाइलुरोनिक एसिड. सो मेजरली जो मैट्रिक्स होगा वो किस चीज का बना होगा, दैट विल बी ऑफ हाइलुरोनिक एसिड. ठीक है, अच्छा एक चीज जो